Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hopefully, all of you are fine at home. Today, we will discuss our topic, that is the reactions of acids and bases. So, let's start our topic. You have read in your previous classes that acids and bases have different taste. Acids have sour taste while the bases have a bitter taste. In addition, acidic and basic solution differ chemical properties in several important ways. It means that we can check the properties of acid and bases by different chemical reaction. The reaction which is given by acids and bases are different. So we can classify the reaction of acid and bases in different classes. The first one reaction which is given by acid and bases are known as the neutralization reaction. Here you can see in a diagram that when acid and bases are combined with each other, they will produce a very well-known familiar equation, that is the production of salt and water. It means that when any acid and base are combined in equal proportion with each other, they will always produce the salt and water. And the formation of the salt and water is known as the neutralization reaction, because the salt which is formed by the strong acid and strong base, the pH of this salt is exactly equal to 7. It means any salt whose pH is equal to 7, it shows that the salt is almost neutral. And so the acid which have a low pH while the bases have higher pH, and by the reaction between these two things, they will produce a salt, and salt have pH that is equal to 7, which shows a neutral range. So these reactions are known as the neutralization reaction. It means that a neutralization reaction is basically a reaction of an acid and a base that result an ionic compound and possibly the water. The salt which is formed by this reaction has ionic nature. So we can say that the ionic compound is found by this reaction. The ionic compound that is a product of a neutralization reaction is called a salt. So, in generally, a neutralization reaction between an acid and a metal hydroxide. The metal hydroxide is basic in nature, as you have seen in previous classes, that group first and group second hydroxide are basic in nature because they will produce a base by reaction with water. So we can say that neutralization reaction will be take place between any acid and the strong bases of group first, group second metal hydroxide. So the hydroxide and the acid will combine with each other. As a result, they will produce a characteristic salt as well as water. Here is a familiar equation, that is the acid which is known as the hydrochloric acid, and a base which is known as the sodium hydroxide, and its common name is caustic soda. When caustic soda will combine with HCl, they will produce a salt, that is NaCl, sodium chloride, as well as a water. So here you can see that the overall production of this reaction, that is Na, will be converted into Na positive, while Cl will be converted into Cl negative. So this salt formation doesn't play any important role, but the formation of water is most important in these neutralization reaction. I can clear this equation on a whiteboard. Here you can see that when we will talk about the sodium ion, you know that sodium ion will possess a charge that is positive, while Cl have a charge that is negative. So when these that is OH, because we are going to talk about the base solution. So when this base solution will combine with acid like hydrochloric acid or any other acid, so we can say that by the reaction of these two things, they will react with each other, and by this reaction, OH negative ion will possess a negative charge. In the same way, sodium will possess a positive charge. In another term, you can see that hydrogen will possess a positive charge, while Cl negative will possess a negative charge. Uh, Now you can see that when both these two things are combined with each other,
they will produce two important product that is known as the salt, which is sodium chloride in this case, and another thing which is produced by this reaction, that is the formation of water. So by this reaction you can see that these positive and negative ions are combined with each other. Like here you can see that this positive ion as well as this negative ion, that is this negative ion, both these reaction will combine with each other, that is the production of sodium ion and chloride ion. So the main and important thing which is formed by this reaction, that is known as the water. uh, यानी यहाँ पर ये जो वाटर है इसकी फॉर्मेशन बच्चों क्या होगी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव आयन जो नेगेटिव आयन होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ये चीज़ क्या हो जाती है, न्यूट्रल। तो वो चीज़ या वो आयन्स जो कि इस रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो मेन रोल इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसका होगा, दैट इज योर वाटर का होगा, एज वेल एज किसका होगा, OH नेगेटिव आयन का होगा। इट मीन इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने की वजह से हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज योर साल्ट की फॉर्मेशन हुई थी, और इन पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साल्ट होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ये चीज न्यूट्रल हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो ओवरऑल टर्म है यहाँ पे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि जो यहाँ पे वाटर है इसकी फॉर्मेशन अपना एक मेजर रोल प्ले करती है। तो इसी की फॉर्मेशन को हम मद्देनजर रखते हैं हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। तो जब भी आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करनी है तो हमने कहना है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स या जो आयंस होते हैं वो रिएक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, और जो ओवरऑल रिएक्शन में टेक पार्ट होता है दैट इज दीज आयंस का। तो अब इसके हवाले से बच्चों याद रखिएगा कि ये जो पॉजिटिव आयन थे दैट इज Na पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव था, इन दोनों के आयंस ने ओवरऑल रिएक्शन में कोई टेक पार्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सिंपली वही रिएक्शन आ गया है। और अब इन आयंस को जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते बच्चों, इनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेक्टेटर आयन का। यानी ये अभी आपको जो बात बताई मैंने इस रिएक्शन के अंदर कि ये जो आपने पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस देखे थे, इनके लिए हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है कि ये वो आयंस हैं जो कि इस रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते, और जो चीजें रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करती बच्चों उनके लिए हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, दैट इज नोन एज द स्पेक्टेटर आइन। स्पेक्टेटर आइन। अब ये स्पेक्टेटर आइन क्या है, ये वो आइन है जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्पेक्टेटर आइन होते हैं इसका क्या मतलब है कि दोज आइंस विच डोंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि दोज आइंस विच डोंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्पेक्टेटर आइन जो है वो इन रिएक्शन के अंदर कोई भी रोल अपना प्ले नहीं करते, इसलिए हम इनको स्पेक्टेटर आइन का नाम देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे पास फिर फाइनल इक्वेशन किसकी बनती है, दैट इज दी एक पॉजिटिव आइन और इच नेगेटिव आइन, एंड एज रिजल्ट दे विल प्रोड्यूस आ वाटर। सो दी अबव इक्वेशन जो है ये हमारे पास ओवरऑल समरी बयान करती है कि जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है वो किस किस के दरमियान में हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान में हो रहा है, जिसकी वजह से जो साल्ट बना था उसके जो आइंस थे उन्होंने एक दूसरे के फैट को कैंसिल किया। तो ओवरऑल फिर हम कहते हैं इस रिएक्शन में किसका रोल होता है, दैट इज दी वाटर की फॉर्मेशन का रोल होता है। तो जब भी आप किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद हैं तो फिर हम वहां पर कहते हैं कि जो स्पेक्टेटर आइन होते हैं वो अपने इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और मेन रोल जो है वो फॉर्मेशन ऑफ वाटर का होता है इन केस ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप इन रिएक्शन के हवाले से डिस्कशन करें तो ये जो टॉपिक है आपकी बुक में जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये टॉपिक आपकी सनाउल्लाह की बुक में मौजूद नहीं है। ये टॉपिक आपने जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ जिस जगह से, आप इसको एज इट इज तैयार कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए हुए तो आप ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे बच्चों। उसके बाद अगर आप फर्दर देखें
तो हम ये कहते हैं कि अगर आप ये तो थी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल। अब आपने इसकी सेकंड वन एग्जांपल भी स्टडी करनी है, वो है हमारे पास अगेन हमने बेस चेंज की है यहाँ पे, फ्रॉम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ हम आए हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से कंबाइन होता है तो इससे एक साल्ट दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। और अगेन ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम आयन Mg+2 की शक्ल में प्रेजेंट होगा, इसी तरह Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्योंकि 2 मोल्स ले रहे हैं तो 2 Cl नेगेटिव आयन इन मैग्नीशियम पॉजिटिव की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। एज ए रिजल्ट इस साल्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिनमें आयंस की एक्सचेंज होते हैं, यानी जैसे यहाँ देखें ये मैग्नीशियम यहाँ हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ है। अब जब इसका प्रोडक्ट की साइड पर आए तो ये मैग्नीशियम ने अपना पार्टनर चेंज कर लिया, यानी यहाँ से क्लोराइड के साथ कंबाइन होके इसने मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरह H ने इस OH के साथ मिलकर क्या बना दिया है, वाटर बना दिया है। क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो अपने पार्टनर को एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते थे, या इनके लिए एक वर्ड जो था वो डिफरेंट था, या इन्हें सिंपली समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी नाम देते थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक और वर्ड इस्तेमाल किया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बच्चों हम किस और नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज नोन एज द मेटाथीसिस रिएक्शन। इनको हम क्या कहते हैं, मेटाथीसिस रिएक्शन का नाम देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ देखें, अब इस इक्वेशन में से आप Cl निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये MgO ट्वाइस ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन लिखने का क्या पर्पस है कि ये पॉजिटिव आयन इस OH के साथ मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो मेजर रोल यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन का होता है वंस अगेन। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस रिएक्शन के हवाले से याद रखिएगा बच्चों के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका सेकंड नेम क्या है, मेटाथीसिस रिएक्शन। ठीक है, सेकंड नेम इसका क्या है, मेटाथीसिस रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन रिएक्शन आते हैं एसिड बेस के, जिसके अंदर हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ गैस। तो अगर आप बहुत सारी बेसिस देखें जिसके अंदर कार्बोनेट्स मौजूद हैं, सल्फाइड आइन है, सल्फाइट आइन है। सल्फाइड में और सल्फाइड में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, सल्फाइड में वैलेंसी S-2 होती है, वाइल इन केस ऑफ सल्फाइट आइन उसके अंदर वैलेंसी होती है बच्चों SO3-2। ठीक है, और बाइकार्बोनेट आइन होते हैं, कहते हैं ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड है जो कि गैस की प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एसिड जो है जब वो गैशियस प्रोडक्ट से कंबाइन होगा तो वहां पे जो साल्ट प्रोड्यूस होंगे और उसके साथ साथ एक गैस की भी प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन दी गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट HCl से कंबाइन होती है तो सोडियम अपना पार्टनर क्लोरीन के साथ एक्सचेंज करेगा। इट मीन ये सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बोनेट में जो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मिलेगी, और यहाँ से किस चीज की जनरेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल की। और उसके बाद जो CO2 यानी एक ऑक्सीजन लेने के बाद पीछे दो ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड होंगी, और वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगी, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला रिएक्शन था हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड बेस के रिएक्शन की वजह से हमेशा क्या होता है, साल्ट एंड वाटर की प्रोडक्शन होती है। While the second one reaction of acid and bases are those reaction which include with the gas formation, and the gas formation के अंदर हमेशा क्या होगा कि कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होगी। अब here in this reaction you can see that the production of carbon dioxide take place. So when you can write this equation, the overall equation with the carbonate ion and H positive ion, then you can see that here again the combination of water molecule will take place as well as carbon dioxide will be produced. So it means that in this reaction, a carbonate react with an acid to produce a salt, water and carbon dioxide, and the net equation for this reaction is here which is shown above. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये तो हमारे पास एक वैसे कंप्लीट रिएक्शन था। तो अगर आप इस रिएक्शन को नेट इक्वेशन के तौर पर लिखना चाहें कि अगर आप स्पेक्टेटर आयन को कैंसिल कर दें, स्पेक्टेटर आयन बच्चों यहाँ पे कौन से हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, क्योंकि ये दूसरे के साल्ट बनाने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं और ये अपने आपके आयन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप इनको निकाल दें यहाँ से, और पीछे क्या बचता है, कार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन, तो इस इक्वेशन से आपके पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन होगी। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो है वो सेकंड एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन की। भी आपने दोनों इक्वेशंस तैयार करनी है एसिड बेस रिएक्शन में जिसमें गैस फॉर्मेशन है। इसमें एक एग्जांपल आपको सोडियम कार्बोनेट की दी गई। अब ये आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ आप ये इक्वेशन लिखें, आप सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 के साथ भी यही इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा नहीं होंगे, तो वो फिर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बैलेंस होगी। लेकिन चूंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यही है तो आप इतना ही कीजिए तैयार। अब इसके बाद बच्चों ये एक और वेल नोन इक्वेशन है इसकी, जिसमें सल्फाइड। अब यहाँ देखें इसे हम सल्फाइड क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको पहले समझा दूं ताकि आपको समझ आए कि सल्फाइड क्या होते हैं।
तो बच्चों अगर आप ये देखें तो आपको भी बताया था कि जो सल्फाइड होते हैं इनके अंदर वैलेंसी क्या होती है, इट विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, तो अगर हमारे पास वैलेंसी जो है सोडियम Na2 और ये S है। ठीक है, तो जब आप सोडियम सल्फाइड की बात करते हैं तो सोडियम सल्फाइड के केस में वैलेंसी क्या होती है -2, क्योंकि सल्फर पर वैलेंसी क्या आ जाती है जी -2 आ जाती है। अब कैसे आती है -2 ये देख लें पहले आप इस इक्वेशन पे। तो अगर आप इसको देखें बच्चों तो इसके ऊपर जो है वो चार्ज आएगा, दैट इज -2। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा -2 आएगा। इट मीन सल्फर के ऊपर वैलेंसी क्या आएगी -2 आ जाएगी, और इस कंपाउंड को बैलेंस करने के लिए ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज +2 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन जब आपके पास ये जो है वो सोडियम +2 हो और सल्फर जो है वो -2 हो, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सल्फर पर वैलेंसी -2 आए बच्चों, तो उस कंपाउंड के साथ एंडिंग आपने सल्फाइड यानी डी के साथ एंडिंग करनी है। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, दैट इज सोडियम सल्फाइड। तो जब सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन होता है किसके साथ, HCl के साथ, तो अब यहाँ देखिए यहाँ अगेन काउंटर आइन, काउंटर आइन कौन कौन से, दैट इज सोडियम आइन प्लस Cl नेगेटिव आइन। तो भी आपको बताया कि जो स्पेक्टेटर आइन होते हैं अगेन वो स्टेशन में टेक प्लेस नहीं होते, और यहाँ पे H2S यानी गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जनरेशन होगी। तो अगर आप इस इक्वेशन के लिए नेट इक्वेशन लिखेंगे तो नेट इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या बताया था कि जो ऑपोजिट आइन है यानी जो साल्ट बनाने वाले आइन है, जो आइन साल्ट बनाते हैं वो अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इनको हम स्पेक्टेटर आइन बोलते हैं। तो जब नेट इक्वेशन लिखी जाती है हमेशा, तो उस वक्त आपने जो साल्ट बनाने वाले आइन है उनको आपने रिमूव कर देना है यहाँ से, यानी यहाँ से आप सोडियम को रिमूव करेंगे और यहाँ से आप क्लोराइड आइन को रिमूव करेंगे। तो पीछे क्या बचेगा, सल्फाइड यानी जिसके ऊपर वैलेंसी क्या है -2 और 2H पॉजिटिव आइन मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन सल्फाइड की ये मेन इक्वेशन है जो कि नेट आयनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद बच्चों आपने अगर यहाँ देखा तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये हमारे पास सल्फाइड सल्फाइड ये एस वाले जो कंपाउंड है जिसे हम सोडियम सल्फाइड कह रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जिस तरह सोडियम सल्फाइड होते हैं सेम यही बिहेवियर सल्फाइड्स का भी होता है, जो कि बिहेव करते हैं सिमिलरली टू कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड की तरह। और इसकी एग्जांपल उन्होंने आपको क्या दी कि जब आप सोडियम सल्फाइड के सोल्यूशन को डील करते हैं किसी भी एसिड से, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज योर प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो पहले तो मैं ये साइड ड्राइंग रेस कर देती हूँ। अब फर्स्ट करें बच्चों, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर सोडियम सल्फाइड, दैट इज Na2SO3। ठीक है, तो ये इक्वेशन है जी हमारी सोडियम सल्फाइड की। फर्स्ट किया हमने जो एसिड लिया अगेन दैट इज योर HCl। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, अब यहाँ देखें इस कंपाउंड का पहले आपने नेम तैयार करना है। इस कंपाउंड का नेम क्या है जी, सोडियम सल्फाइड। अब जिस तरह आपको उन्होंने पहले लिख के बताया कि जिस तरह से हमारे पास ये जो सोडियम सल्फाइड है ये आपस में इसके साथ कंबाइन होता है HCl के साथ, और HCl के साथ कंबाइन होने पर ये क्या करेगा, ये ऑपोजिट आयन प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ देखें सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलेगा, और क्लोरीन के साथ मिलने पे क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, दैट इज योर साल्ट विच इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। और इसके साथ किस चीज की प्रोडक्शन होगी, दैट इज SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की यहाँ पे जनरेशन होगी। और इसके साथ जो है वो क्या बनेगा, दैट इज योर वाटर H2O। तो यहाँ से आपने देखा कि इस इक्वेशन में अगर आप नोट करें तो आपके जो है ये इस इक्वेशन को बच्चों हम बैलेंस कर लेते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा जी, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ रिएक्शन के इधर सोडियम के 2 एटम है तो यहाँ भी सोडियम के 2 ही एटम होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ देखें 2 + 1 = 3 है। यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और क्लोरीन भी 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन होगी। अब यहाँ देखें अगर आप इसके लिए नेट इक्वेशन लिखेंगे यानी सोडियम को और क्लोरीन को अगर आप माइनस करें तो जो आपकी नेट इक्वेशन होगी वो आप कैसे लिखोगे, दैट इज SO3 - 2। ठीक है, तो ये क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जा नहीं सकते वरना मैं आपको ये शिफ्ट करके बता देती। अब ये सल्फाइड आइन जो है वो किसके साथ कंबाइन हो सकता है, दैट इज 2H पॉजिटिव आइन के साथ। ठीक है,
तो जब ये 2H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होगा तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास किस चीज की प्रोडक्शन होगी, दैट इज योर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन जो है वो आप नेट लिख सकते हैं, ये हमारी नेट इक्वेशन है। इसके साथ जो है वो किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड की जनरेशन हो रही है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये तो थे हमारे वो जनरल रिएक्शन जिसके अंदर गैस की फॉर्मेशन होती है, और इन रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि चूंकि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो इन रिएक्शन को भी हम क्या नाम देंगे, मेटाथीसिस रिएक्शन का। मेटाथीसिस रिएक्शन वो होते हैं कि अगर दोनों आयन्स काउंटर एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे आपने न्यूट्रलाइजेशन को देखा उसको भी आपने मेटाथीसिस रिएक्शन का नाम दिया। ये जो गैस फॉर्मेशन के रिएक्शन होते हैं यहाँ भी जो होते हैं वो आयन एक्सचेंज होते हैं, तो इनको भी हम क्या नाम देंगे, मेटाथीसिस रिएक्शन का। अब वो ये कह रहे हैं कि ये बात जहन में रखें कि जो भी एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं उनके जरिए जो प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट बाय एक्सचेंजिंग द एनाइन अदर केटाइन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, कि अब यहाँ देखें कि आपके पास रिएक्टेंट चेन थे और बनने वाले प्रोडक्ट 3 है, लेकिन अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सिंपल क्या हुआ था, साल्ट एंड वाटर, यानी दो चीजों की फॉर्मेशन हुई थी। तो कहते हैं ये जो दो आइंस जो कंबाइन हो रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से हैं। अगर से दोनों रिएक्शन अगर मेटाथीसिस हैं तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो आ, आया कितने प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से पार्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बच्चों रिएक्शन ऑफ गैस का थर्ड इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन रिएक्शन है कि कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, या जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स आइंस का भी नाम देते हैं। और ये जितने भी मेटल आइंस होते हैं ये उन सब की एबिलिटी है। अब आपको ये मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जितने भी मेटल के केटाइंस होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं एज आ ल्यूविस एसिड के तौर पे। अब तो यहाँ देखें किस तरह से, तो पहले आपको मैं ये ड्राइंग क्लियर कर देती हूँ फिर इसके बाद आपको समझ आएगी। हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, वन इज नोन एज दी मेटल केटाइंस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटल केटाइंस का नाम देते हैं। अब मेटल केटाइंस क्या है जी, पहले हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे, दैट इज योर सोडियम पॉजिटिव आयन। जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन की, तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पर कुछ चीजें शेयर करती हूँ आपके साथ। तो अभी हमने बात की कि हमारे पास जो आयन हो सकते हैं, अब वो आयन कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने अभी बात की कि हमारे पास मेटल आइंस हैं, ठीक है। तो मेटल आइंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हों उनके अंदर क्या होगा, इसकी एग्जांपल पहले मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट किया हमारे पास एक सिल्वर आइन है, ठीक है जी। तो ये जो सिल्वर आइन है, अब इसके पास क्या एबिलिटी है कि ये जो सिल्वर आइन है हमारे पास ये एक्सेप्ट कर सकता है किस चीज को, दैट इज दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो हर वो चीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, यानी अभी हम क्या कहने लगे हैं कि हर वो चीज जो कि क्या करेगी, लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, तो वो क्या चीज क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज द ल्यूविस एसिड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ल्यूविस, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, ल्यूविस एसिड कहलाएगी। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसके ने अपने चार्ज को सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगी, कहीं से भी अगर इसको कोई स्पीशी आके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है, तो जो चीज लोन पेयर प्रोवाइड करेगी, अब यहाँ पे बच्चों दो चीजें आपने कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ, मैं आपको पहले बता देती हूँ। उसका नाम है लोन पेयर डोनर। तो हर वो चीज जो कि लोन पेयर को डोनेट करती है दैट इज नोन एज द बेस। और फर्ज करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल होगी दैट इज अमोनिया। इट मीन दैट कि जब भी आप बात करेंगे किसकी, लोन पेयर की, तो हम ये कहते हैं कि जो बेसिस होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमेशा लोन पेयर को डोनेट कर देती हैं। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ये टेंडेंसी क्यों है कि नाइट्रोजन ऐसा क्यों करती है कि वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देती है, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो चार्ज होता है। तो ये जो है वो एक चार्ज रखती है, यानी इसके ऊपर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये किसको भी डोनेट करेगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मेटल केटाइन। इट मीन
हर वो चीज जो कि इस मेटल केटाइन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। और अगर फर्ज करें कि हमारे पास इस तरह के 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो जब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल इसके साथ सराउंड करेंगे, तो ये जो अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल होगा ये भी इसको क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देगा। And when this lone pair of electron will be shifted here, then we can say that there is a formation of a metal complex sign। तो इसकी वजह से बच्चों ओवरऑल क्या होगा कि ये आपस में ये सारी चीजें कंबाइन होंगी और इनके मिलने की वजह से एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स साइन जनरेट होगा, दैट इज नोन एज द NH3 एंड देन ट्वाइस। ठीक है, और इसके बाहर बच्चों चार्ज होगा दैट इज पॉजिटिव। और इसको मैं पहले प्रॉपर करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब बच्चों ये जो हमारे पास साल्ट बना है इसका नेम होगा डाई अमाइन सिल्वर आइन। ठीक है, ये हमारे पास डाई अमाइन सिल्वर आइन है। ठीक है, और ये कैसे जनरेट हुआ कि ये जो सिल्वर आइन है वो मेटल केटाइन से और बेस से के मिलने से आपस में कंबाइन हुआ, क्योंकि मेटल जो केटाइन होते हैं वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए बिहेव करेंगे एज अ ल्यूइस एसिड। वाइल यहाँ पे जो अमोनिया है इसने यहाँ पे एक्ट किया एज अ बेस के तौर पे, तो यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या होगा, एज अ केटाइन डोनर सॉरी लोन पेयर के डोनेट करने के तौर पे होगा। तो इस तरह से इनके दरमियान में ये रिएक्शन हो जाएगा और ये रिएक्शन इनके क्या कहलाएंगे, कम्प्लेक्स रिएक्शन, या इनके नतीजे में कम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन होगी। तो अब इसको बोलते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, यानी असेंबली ऑफ मेटल केटाइन एंड द ल्यूइस बेसिस बॉन्डेड टू इट सच एज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स साइन। जैसे अभी आपने इस इक्वेशन में देखा था, तो ये आपको मैंने बहुत डिटेल से समझाई है, तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। तो अब आगे आती है इस कम्प्लेक्स साइन की स्टेबिलिटी की बात, कि आया ये जो कम्प्लेक्स है ये हमारा स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो बच्चों जब भी आपने स्टेबिलिटी की बात करनी है तो ये स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कांस्टेंट पे, और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट का या स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। और वो हम कैसे लिखते हैं, जैसे आपने बच्चों के सी लिखा था, के सी किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के, तो सेम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी के एफ के इक्वल होगा। और इसमें देखें प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, AgNH3 ट्वाइस, ये आपका प्रोडक्ट है वो हमने पहले लिख लिया। रिएक्टेंट की साइड पे Ag पॉजिटिव वो क्या है जी, अमोनिया है, और अमोनिया के साथ क्या लिखे हुए हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, उनकी पावर बन जाते हैं। तो इस तरह से हम के एफ लिखते हैं, और के एफ इस इक्वेशन के लिए निकलता है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है अब ये। ठीक है, तो जितनी ये वैल्यू प्लस साइन के साथ है और जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी, ये शो करता है कि ये आयन, ये जो कम्प्लेक्स है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो इट मीन ये जो लार्जर वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी स्टेबिलिटी के, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कम्प्लेक्स साइन। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि ये तो था इसका फॉर्मेशन, यानी अगर आप इसको बना रहे हैं, लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम इसकी डिसोसिएशन भी करवाते हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है या इनवर्स वैल्यू अगर आप लेते हैं। ये देखिए बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ओवर फॉर्मेशन कांस्टेंट, डी स्टैंड फॉर डिसोसिएशन एंड एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो जो आपने इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए लिखी थी, तो वो कहते हैं डिसोसिएशन क्योंकि इसके इनवर्स है, तो इनवर्स करने के लिए या रेसिप्रोकल लेने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 1/, के साथ वो वैल्यू लिखते हैं। तो जब आप इस वैल्यू को उलट देंगे तो ये चीज जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो किस में चली जाएगी, न्यूमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, और दैट इज Ag पॉजिटिव NH3 का स्क्वायर ओवर AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव आइन आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी फॉर्मेशन कांस्टेंट की होगी, क्योंकि ये आइन जो है वो अपने आप को स्टेबल रखता है, तो ये डिसोसिएट कम से कम ही होता है, तो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों कम आएगी। तो बच्चों यहाँ तक आपका टॉपिक था, और यहाँ तक आपके रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस अब कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह कल जो है जो आपका नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होगा वो आपका इंडिकेटर्स एंड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर पर डिपेंड करेगा। तो इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।